Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 8th, chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics. So, in this chapter, we are going to learn about the different types of synthetic fibers, their advantages, disadvantages, and types of plastics. So, first of all, we are going to learn about the natural fibers. In our previous classes, we have studied that natural fiber means the fibers which we get from the plants or animals or from the nature, right? A fiber is a thin thread of a natural or artificial substance, especially one that is used to make cloth or rope. Fibers क्यों use करते हैं students? Fibers are used to make द फैब्रिक. आपने 7th क्लास में एक चैप्टर भी पढ़ा है, फाइबर टू फैब्रिक. So fibers are classified mainly into two categories: natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers that we get from plants and animals. The examples of natural fibers are cotton, silk, wool, hair fibers, linen, etc. Now plant fibers. Plant fibers, the example of plant fiber is cotton. Cotton fiber is obtained from cotton plant, which is the traditional fibers used in the textile industries. कॉटन फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है. लाइनिन फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट. लाइनिन फैब्रिक कहाँ से मिलता है? फ्लैक्स प्लांट में से मिलता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइनिन fabric are very much similar to the cotton fabric. Same properties है linen and cotton की. Jute is obtained from the jute plant. On account of its high strength, it is perfect for used in packaging materials. Packaging material में जो fiber use होता है वो है jute. The next is animal fiber. Animal fiber are the fibers that we get from animals. ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम एनिमल फाइबर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल है सिल्क. सिल्क कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क वॉर्म इज एन एनिमल. सो सिल्क इज अ एनिमल फाइबर. द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मलबरी सिल्क वॉर्म. हमने 7th क्लास में पढ़ा भी है टाइप्स ऑफ सिल्क्स. उसमें से एक है मलबरी सिल्क वॉर्म, right? The next is wool. Wool we get from sheep, right? The wool fabric is soft to touch and provides warmth to the weather, due to which it is preferred choice in winter, right? wool जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है टच करने में एंड इट प्रोवाइड वार्मनेस प्रोवाइड करता है, इसलिए वुल जो है वो प्रेफर्ड किया जाता है विंटर सीजन में, राइट? The next is yak fabric. Yak is an animal which is largely found in the Himalayas in Tibet and India. Right? Yak एक तरह का animal है, इसलिए hairs of the yak is very useful in the production of warm clothes, mats, etc. Right? The next is synthetic fibers. Synthetic fibers को आप man made fibers भी बोलते हैं. ऐसे fibers जो इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्रीज़ में बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं synthetic fibers. man made fibers भी बोलते हैं इन्हें. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो केमिकल्स से बनते हैं, इसलिए उनको सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है, बिकॉज दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़. उनकी एक पर्टिकुलर खुद की प्रॉपर्टी होती है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर इन लेंथ एंड आर लॉन्ग लास्टिंग. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो लेंथ में बड़े होते हैं एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग इन नेचर. द ओनली लिमिटेशन इन सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे आर पुअर एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर एंड दे कैच फायर ईजिली. ठीक है, एक ही लिमिटेशन, एक ही डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का कि वो बहुत पुअर हैं, एब्जॉर्बेंट मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई उनमें फायर जल्दी लग जाती है. सिंथेटिक फाइबर्स मैनी आइटम्स कंटेन मटीरियल सच एज पॉलिस्टर, polyamide, terylene, rayon, etc. These are the examples of synthetic fibers.
The items previously mentioned are all man-made fibers and are called synthetic fibers. Now, synthetic fibers is a chain of small chemical units joined together. जैसे हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे, नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिल रहा था? नेचर से मिल रहा था, प्लांट से मिल रहा था, एनिमल्स से मिल रहा था, राइट। अब सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो किसका बना हुआ है? केमिकल यूनिट्स का, छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स का बना हुआ है, और इन छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर, राइट। अब जब ये छोटे छोटे यूनिट्स जो होते हैं एक साथ एक चेन में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। So a large chain of monomer is known as polymer. The process of combining small monomer to form a large polymer is called polymerization. अब जब हम इन polymers को join कर देते हैं और इनको processed करते हैं large scale पे तो उसको हम बोलते हैं polymerization process. The next is rayon. Rayon क्या है? Rayon is prepared from cellulose. Rayon किससे बनता है बेटा? It is made from cellulose. Though cellulose is a natural polymer, it needs extensive chemical treatment to form rayon. अब आप बोलोगे कि सेल्यूलोज तो हमें प्लांट से मिलता है, तो फिर रेयन भी नेचुरल फाइबर होना चाहिए, राइट। बट रेयन का जो हमें सेल्यूलोज मिल रहा है प्लांट से, उसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है, तब जा कर के वो रेयन फॉर्म करता है। रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इज कंफर्टेबल टू वेयर, ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है एंड इट इज कंफर्टेबल टू वेयर। इट कैन ईजिली डाइड इन विविड कलर, बहुत सारे कलर्स में हम रेयन को कलर भी कर सकते हैं, राइट। अब इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज इट लुक्स लाइक, अपीयरेंस में सिल्क जैसा होता है रेयन, इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन आर एज फॉलोज। हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रेयन की। फर्स्ट, ईजिली डाइड विथ वूवन इनटू क्लॉथ, हम उसको ईजिली डाई कर सकते हैं, पहन सकते हैं एज अ क्लॉथ। ड्रेप्स वेल, लस्चरस इन अपीयरेंस मतलब शाइन करता है। गुड एब्जॉर्बेंट है ऑफ स्वेट मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं रेयन की। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ रेयन। अब हम देखेंगे यूजेस क्या है रेयन के, वन बाय वन वी विल स्टडी। इट इज़ यूज इन द सर्जिकल ड्रेसिंग। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी किट्स यूज़ होती हैं, पीपी किट्स यूज़ होती हैं कोरोना वायरस में, तो वो किसकी बनी हुई होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ रेयन ओनली। सेकेंड वन इज रीएनफोर्सिंग नायलॉन टायर्स, नायलॉन के टायर्स भी बनते हैं, ठीक है। अपहोल्स्ट्री फॉर लग्जरी कार्स एंड ऑफिस एंड होम फर्निशिंग। सो स्टूडेंट्स, ये लग्जरी कार्स में, ऑफिस में फर्निशिंग के लिए यूज़ किया जाता है रेयन। कर्टन्स जो होते हैं वो बने होते हैं रेयन्स के। देन ड्रेस मटेरियल्स, बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट सिल्क एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट, तो ड्रेस मटेरियल में भी यूज़ होता है। देन मिक्सड विथ फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट, अगर हम रेयन को फाइबर ग्लास के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो हेलमेट मेकिंग में भी यूज़ आता है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ रेयन। एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी यूजेस। रेयन इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक्स बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेयन यूज होता है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट, ड्रेसेस, एप्रन्स एंड कैप्स। Rayon is mixed with wool to make beautiful and durable carpets. Rayon is used to manufacture tire cords. Rayon is used for making bandages and lints for surgical dressing of wounds. The next is nylon. Nylon, it is chemically it is polyamide. ठीक है, इसको हम polyamide भी बोलते हैं because it is made up of polyamide polymer. It is the strongest synthetic plastic material which can be molded in any shape. ये एक ऐसा पॉलीमर है या ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम किसी भी शेप, किसी भी साइज में मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ईजी टू डाई, स्ट्रॉन्ग है, डाई भी इजीली हो जाता है, एंड
इट डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर ईजिली, वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करता है. इट इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड हैंस हाईली ड्यूरेबल. इलास्टिसिटी होती है नेचर में इसके, और ये ड्यूरेबल भी है. राइट. नाउ नायलॉन is very strong, lustrous, highly elastic, extremely fine, lightweight, easy to wash, wrinkle free, does not absorb water and is not attacked by fungi and moth, so it is durable. So some of the uses of nylon we are going to study is toughest elastic material है, is lustrous and easy to wash, can be made into pellets or powdered, resistance to oil, grease, moths, fungi and other pests. It can be molded into fiber, bristles, sheets, rods, tubes and coatings. Now the main uses of nylon are, it helps in making saris, helps in fishing nets and fishing lines, track suit, raincoat, swimming wears, sleeping bags, thread, reel thread, ropes, upholster, then seat labels, then stretchable wears. All these things are made from nylon. ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? नायलॉन से बनती हैं. The next is polyester. Polyester, alcohol and organic acid react together to make a compound called ester, which are polymers. ठीक है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड जब मिक्स होते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर. अब एस्टर अगर बहुत सारे पार्ट्स में जॉइन होता है, एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, तो वो बना देता है पॉलीएस्टर. राइट. पॉलीएस्टर कम अंडर द ब्रांड नेम्स ऑफ टेरिलीन, डैक्रॉन, टैरन एंड पॉलिस्टर. ये कुछ नेम्स हैं जिससे पॉलिस्टर जाना जाता है. नाउ the properties of polyesters are, it is resistance to pest and chemicals. मतलब पेस्ट का कोई अफेक्ट नहीं होता, केमिकल्स का कोई अफेक्ट नहीं होता इस पर. टफ है, लाइट वेट है एंड दे आर इलास्टिक इन नेचर. फॉर्म्स अ परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड प्रेस्ड. अगर उसे प्रेस करेंगे या हीट करेंगे तो परमानेंट क्रीज आती है उसके ऊपर. ईजी टू वॉश, डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच. ठीक है, श्रिंक नहीं होता, स्ट्रेच नहीं होता. एंड ड्राइज क्विकली, बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाता है. द यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर्स आर, it used in the making of magnetic audio and video cassettes and floppy disk. ठीक है, it is when it is mixed with fiberglass for molding, it turn into helmets, protective sheets and hulls in boats. It is highly suitable for shirting, suiting, saris and draperies. इन सब चीज़ों में यूज़ होता है पॉलीएस्टर्स. एक बार और हम फंक्शन यूजेस देखेंगे पॉलीएस्टर के. तो पॉलीएस्टर fibers are used in manufacturing saris, dress materials, curtains, etc. It is used for making sails for sailboats. Polyester is used for making water hoses for firefighting operations, and polyester is used for making carnivore belts. Carnivore belts भी बनाने में यूज आता है polyester. The next is acrylic fiber. Acrylic fiber जो है, it is often used for as a substitute of wool. जैसे नेचुरल फाइबर में वुल होता है, ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर में एक्रेलिक होता है. मतलब वुल की जगह पे एक्रेलिक यूज होता है. एक्रेलिक फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं. मतलब रिंकल्स नहीं आते उसके ऊपर. इट इज़ ईजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली. इट रेजिस्टेंस टू मॉथ, ऑयल्स, केमिकल्स, डिटोरिएशन ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट. मतलब अगर मौत उस पर अटैक करेगी तो एक्रेलिक का कुछ भी ख़राब नहीं होगा. ऑयल अगर एक्रेलिक फाइबर पे गिर जाएगा तो भी उसको डैमेज नहीं करेगा. केमिकल्स डैमेज नहीं करेंगे, ना ही सनलाइट का एक्सपोजर एक्रेलिक फाइबर को डैमेज करेगा. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रेलिक फाइबर, दे आर रेजिस्टेंस टू मॉथ, कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, अवेलेबल इन शीट्स, strong and stain resistant, durable for light and washable. They are soft with crimp resembling wool. Uses of acrylic. So
The uses of acrylic sheets are the wool obtained from natural fiber sources is quite expensive. wool बहुत ज़्यादा expensive होता है, ठीक है. वेयर क्लोथ्स जो एक्रेलिक फाइबर के बने होते हैं वो बहुत चीप होते हैं. तो एक्रेलिक फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट, जैकेट्स एंड cushions. Now, so these are the types of synthetic fibers. Now we are going to learn about the advantages of synthetic fibers. कि क्या advantages होते हैं जब हम synthetic fibers यूज़ करते हैं. पहली चीज़ strong होते हैं. synthetic fibers जो होते हैं बहुत strong होते हैं and they can take up heavy things easily. ठीक है, मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है. दे रिटेन देयर ओरिजिनल शेप. सिंथेटिक फाइबर्स रिटेन देयर ओरिजिनल शेप, सो इट्स ईजी टू वॉश एंड वेयर. अपने ही शेप में रहते हैं तो ईजिली हम उसे वॉश कर सकते हैं और वेयर कर सकते हैं. इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो. दे आर सॉफ्ट इन नेचर. सो सॉफ्ट है नेचर में तो हम क्लोथिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं. कलर वेराइटीज ऑफ कलर्स में हम डाई कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को. सो नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. दे डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, मतलब स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, मतलब हीट ट्रैप होती रहेगी उसके अंदर. दे आर रफ फील. सिंथेटिक फाइबर्स गिव रफ फील मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर पजामाज एंड अंडरवेयर्स. ठीक है, एक रफ फील आता है, सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा नहीं रहती है. इट इज़ डेंजरस टू वेयर नियर फायर बिकॉज दे कैच फायर वेरी ईजिली. दे कैनॉट बी ईजिली आयर्न एज दे मेल्ट वेरी ईजिली. हम ईजिली उसे आयरन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आयरन करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स. I hope you got all the stuff which I have explained you, and if any query is there you can write in the comment section, and if you are well understood by this video you can like the video. Thank you so much.